Guys, I'm Himanshi and this is again a video on your exercise 1.1, that is third part, which is left 867 and 255. By Euclid division we have done until here a is equals to bq plus r, a is equals to 0 greater than r is greater than b. Okay, a is equals to 867, b is equals to 255. Now 867 is equals to 255 into 3 plus 102. Now 102 is 255 is equals to 102 into 2 into 51. Okay, plus 51. Now 102 is in the dividend and 51 is here, plus into 2 plus 0. So we get our 0 in third step. Okay, so we get 0 in our third step. Okay, hence therefore you can say the HCF of 867 and 255 is 51. Okay, then our question second is, show that any positive integer is of the form, say 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5, where q is some integer. You can also read in your book also. Okay guys, I'm writing here also, show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5, where q is some integer. So now we start. Okay, so what we have to write first? We have to write let a be as any positive odd integer. Okay, let r be any positive odd integer. A. Okay, now what we have to do? Then by Euclid division algorithm, okay, then by Euclid division algorithm you will again write the same formula. A is equals to bq plus r, 0 is greater or equal than r, b, okay, greater than b. So now we have to write a. What is a is given us? We have given a. Okay, one more thing, r can be, therefore r can be any integer also. You can also write that r is equals, if a be any positive integer, then r is equals to 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, because 6 not, only 5 तक क्यों लिया हमने? क्योंकि 6 तो हमारा नेक्स्ट आ ही रहा है, इसके बाद नहीं लिया, इसके पहले लिया. क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि हमें यहाँ पर 6 क्यों दे रखा है. हमारे देखो फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल्स टू b, यानी कि हमें b दे रखा है, q दे रखा है, r दे रखा है, पर a नहीं गिवन है. तो हमें पता है कि जो a इज इक्वल्स टू होता है 0 से इक्वल और ग्रेटर देन r होता है या फिर ग्रेटर देन b होता है. अब हमने a लेना है ना,
सॉरी अब हमने आर लेना है ना कुछ भी, तो अब उसके लिए हमें बोला कि ऑड इंटीजर आना है। भाई यहाँ पर 5 दे रखा है, यहाँ 1 दे रखा है, यहाँ 3 दे रखा है। अब इन्हें ही शो करना है हमें। कैसे शो करेंगे? लेट्स सी गाइस। सो नाउ वी हैव टू राइट हियर, we have to write here, what we have to write here, we have to give all these number there are, okay। यानी कि हमें जो ये ऑड इंटीजर एक दे रखा है, शो डैट दे रखा है, कि इन्हें पॉजिटिव इंटीजर बताना है। कैसे शो करेंगे वो देखते हैं अब हम। 6 क्यू प्लस 0, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 5। सो हमने ये बना लिया पूरा, हमने सारे आर पुट कर दिए उसके जगह पर, ओके। क्योंकि हमें बोला है वेयर क्यू इज सम इंटीजर, क्यू कोई इंटीजर होगा। तो हमने क्या कर दिया, हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी, आर की जितनी भी थी ना, आर की हमने ली थी वो सारी हमने पुट कर दी इस इंटीजर के अंदर, इसको शो करने के लिए। नाउ व्हाट इज आर इवन एंड व्हाट इज आर ऑड। इवन बच्चे आप सभी को पता है 2 4 6 8, आप सभी को पता है। और इवन सबको पता है। ऑड क्या होते हैं? ऑड वो होते हैं 1 3 5 7 9 etc. Okay, so here our odd integers are 1, it is 2 and it is 3. So therefore odd integer are 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5. ओके, तो हमें मिल गए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेट्स गो टू थर्ड क्वेश्चन इफ यू अंडरस्टैंड इट, और इफ यू नॉट अंडरस्टैंड आई विल अगेन अंडरस्टैंड यू। क्वेश्चन इज show that any positive odd integer is of the form of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, where q is some integer. So let a be any positive odd integer. Then by applying Euclid division algorithm you can solve it. Okay, one confusion is here, that is r is equals to 0 1 2 3 4 5. Why I have taken this? I have taken this because our number is 6. Here is also 6, here is also 6, and there at the position of r is 1 3 and 5. अब क्या करा मैंने, इसके बाद हमने r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 क्यों पुट करी? क्योंकि हमें निकालना, हमें शो करना कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो हमें इन्हीं को शो करने के लिए इन्हें दोबारा लिखना पड़ा। और कैसे लिखना पड़ा, वो भी इस फॉर्म में लिखना पड़ा। तो अब मुझे समझ आ ही चुका है कि आपको समझ आ चुका होगा, मुझे भी समझ आ गया, आपको भी समझ आ गया। सो आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इट। सो लेट्स गो टू थर्ड क्वेश्चन। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन ऑल्सो। It is saying, question is saying an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. So इसमें क्या बोल रहे हैं फर्स्ट लाइन में? ये बोल रहे हैं एक आर्मी कंटेंट, एक ग्रुप था 616 मेंबर्स का, वो कहाँ मार्च बिहाइंड कर रहा। आर्मी बैंड के मेंबर कितने थे? 32 मेंबर्स थे, ठीक है। 32 मेंबर ये थे और 616 मेंबर ये थे, ठीक है। अब द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो दो ग्रुप थे वो एक सेम नंबर में कॉलम में मार्च कर रहे थे। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। अब हमें बताना है कि वहां पर कितने कॉलम थे कि जिसमें वो मार्च कर रहे थे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सो लेट्स गो टू सॉल्व इट। ओके, सो वी हैव गिवन
616 members, an army contingent. Okay, an army okay, and 616 members are there, and army band members. It is given also, we have to write. "32 members." Okay, now what we have to do to find it, we have to find the number of columns. So अब क्या करना पड़ेगा हमें, अब हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम करना होगा बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम. ओके किड्स, गाइस इतना हो गया. अब दोबारा हमें फॉर्मूला लिखना है. ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. A is equals to 0 greater than or equal to R B. Okay, now A is equals to 616, B is equals to 32. 616 is equals to 32 into 19 plus 8. 32 is equals to 8 into 4 plus 0. So the HCF of 616 and 32 is 8. यानी कि अब क्या निकल आया है, hence maximum number of columns in which they march is is 8. तो समझ आया कैसे निकाला? दोबारा बता देती हूँ. हमें बोला है कि एक आर्मी कंटिंजेंट है, 2 ग्रुप्स हैं यानी कि उसमें, और 616 मेंबर्स आर देयर. ओके, और मार्च बैंड के कितने मेंबर्स हैं, आर्मी बैंड के कितने मेंबर्स हैं, 32 मेंबर्स हैं. समझ लो, मैक्सिमम नंबर्स दे रखा है, तो मैक्सिमम नंबर हमें क्या करना है, HCF निकालना है. जब भी मैक्सिमम नंबर बोला हो क्या निकालना है, HCF, और मिनिमम नंबर बोला हो तो LCM. ओके, तो इससे हमने समझ आ गया कि हमें भाई HCF निकालना है. HCF ये हमारा आ गया, यानी कि 8 है. समझ आ गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे विल मार्च इज 8. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन. ओके, दिस इज थर्ड क्वेश्चन. ओके, so for this, until here I have completed this question. Now bye bye. I will again make another video for that 4th and 5th question for your exercise number 1.1. Please subscribe it, like it, comment it and share it also. Please, my 3 videos are very important to you all and very useful to you also. So please like it, subscribe it and share it and also comment it. Thank you.